to one and all, respected principal ma'am, venerable teachers, and my dear friends. Today, I, Anushka Srivastav, And I, Gauri Vishnoi, welcome you all to the auspicious assembly on Gandhi Jayanti. Today, we are gathered here to dedicate this day to the ultimate leader the world has ever seen, Mahatma Gandhi. On this day, we commemorate his birthday and reflect on the timeless values of truth, non-violence, and peace that he taught us. And let's not forget another leader who was also born on 2nd October, Lal Bahadur Shastri, who was our second Prime Minister. He was a symbol of humanity, simplicity, and dedication. His contribution during the Indo-Pak War of 1965 and his famous slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. has left a lasting impact on India. So let us begin today's assembly with a speech by Anjali Bhatia of 11th A on the life and the values of Gandhiji. Today, as we gather here to celebrate Gandhi Jayanti, we honor the legacy of a remarkable leader who taught us the profound power of truth, non-violence, and compassion. Mahatma Gandhi's vision transcended his times and continues to resonate deeply in our modern world. In an era characterized by divisions, conflicts, and rapid changes, Gandhian values offer us essential guidance. First and foremost, his commitment to non-violence remains crucial. As we witness the ongoing conflicts around the globe, Gandhian values offer us to seek peaceful resolutions. Non-violence is not merely the absence of conflicts, but a proactive stance to promote understanding and dialogue. Equally important is Gandhi's unwavering dedication to truth and integrity. In today's age of misinformation and skepticism, embracing honesty in our public and personal lives fosters trust and accountability. Gandhi also championed the idea of simplicity. In a world driven by consumerism, his call for a simple lifestyle encourages us all to follow our simplicity. Gandhi also taught us to uplift the marginalized, which reminds us of our responsibility. Moreover, his emphasis on self-reliance teaches us how to build resilience and independence in our communities. By developing local resources and supporting one another, we can build resilience and independence, reducing our reliance on the external forces. As we reflect on Gandhi's teaching today, let us commit to integrating these values into our daily lives. Together, let us pledge to honor the legacy of Mahatma Gandhi by embodying his actions into our decisions. Together, let us pledge to honor his legacy by paying tribute to him and also paving the way for a more compassionate and brighter future. Thank you. Well said by Anjali. Gandhiji's legacy is not just a part of history. It is a guide on how we can live our lives peacefully today. Poetry always has a unique way of touching our hearts and conveying deep emotions. Vardika Singh from 11th E is here to recite a heart-rending, self-composed poem. भारत माता अंधियारे की काली चादर में लिपटी थी पराधीनता की बेड़ी उनके पैरों में चिपटी थी। था हृदय दग्ध, धू धू करके उनमें ज्वालाएं उठती थीं। भारत माँ के पवित्र तन पर कोरों की फौजें पलती थीं। गुजरात राज्य का एक शहर है जिसका नाम पोरबंदर, उस राज्य में उनका जन्म हुआ था, चमन हमारा धन्य हुआ। दुबला पतला छोटा मोहन पढ़ लिख कर वीर जवान बना था। सत्य अहिंसा देश प्रेम उसकी रग रग में भिदा सना। उसके एक एक आवाहन पर सौ सौ जन दौड़े आते थे। सत्य अहिंसा दो शब्दों के अद्भुत अस्त्र उठाते थे।
गोरों की काली करतूतें, जलिया वाले बागों का गम। रह लिए गुलाम बहुत दिन तक, अब नहीं गुलाम रहेंगे हम। जुल्हे निल्हे खेती हर तक गांधी के पीछे आते थे। डांडी समुद्र तट पर आकर सब अपना नमक बनाते थे। भारत छोड़ो, हर ओर यही स्वर उठता था। भारत के कोने कोने से गांधी का नाम निकलता था। वह मौन सत्य का आग्रह था, जिसमें हिंसा और रक्त नहीं। मानवता के अधिकारों की बात शांति से कही गई। गोलों तोपों बंदूकों को चुप सीने पर सहते जाना। अपने सशस्त्र दुश्मन पर भी बढ़कर आघात नहीं करना। सच की ताकत के आगे थी तोपों की हिम्मत हार रही। सच की ताकत के आगे थी गोरों की सत्ता कांप रही। हट गया ब्रिटिश ध्वज अब फिर से, आजाद तिरंगा लहराया। अत्याचारों का अंत हुआ, गांधी का भारत हर्षाया। गांधी का भारत हर्षाया। धन्यवाद। Thank you, poet, for sharing your beautiful work with us. Now we present before you a thought-provoking skit that showcases the life and teachings of Mahatma Gandhi, the father of the nation. This performance will remind us the value of truth, non-violence and self-reliance that Gandhiji stood for. Today, we are privileged to have with us as our special guest, well-known psychiatrist of our city, Dr. Alok Bajpai. Sir is a psychiatrist trained at NIMHANS, Bangalore, and had few stints abroad before settling in Kanpur. Apart from practicing psychiatry, he has devoted himself to the mental health care of children and also helping children with learning disabilities. Besides, he holds special counseling sessions for students to handle the commonly faced problem of stress in schools and colleges. Sir has also authored many books like An Hour with the Mahatma, latest being Life, Death, God Mythology to Biology. We feel immensely pleased to have the honor of your presence today, sir. May I request Madam Principal to honor sir with a token of our respect and gratitude. Now we have a thought-provoking skit showcasing the life and teachings of Mahatma Gandhi, the father of the nation. This performance will remind us the value of truth, non-violence and self-reliance that Gandhiji stood for. दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमारे देश भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया। महात्मा गांधी जी की शिक्षाएं आधुनिक भौतिकवादी युग में आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। आज हम सभी गांधी जयंती मनाने हेतु प्रेक्षागृह में एकत्रित हुए हैं। उनके प्रेरणादायी जीवन से जुड़े प्रसंगों को लघु नाटिका के रूप में कक्षा 11 के प्रतिभागी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सूत्रधार के रूप में मैं अंजलि भाटिया, मैं अनुष नथानी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। गांधी जी के विद्यालय में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर निरीक्षण हेतु आने वाले थे। विद्यालय के शिक्षकों ने अंग्रेजी भाषा के मूल्यांकन के लिए एक इमला करवाई। इसकी योजना शिक्षकों ने पहले से ही बना रखी थी। विद्यार्थियों को डिक्टेशन में 5 अंग्रेजी शब्द बोले जाने थे, जिसमें से
एक शब्द केटल भी था। मोहनदास ने इस शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी। मोहन, तुम्हारी कैटल की स्पेलिंग गलत है। मास्टर जी, मुझे कैटल की स्पेलिंग याद नहीं। तुम्हारे बगल में बैठे विद्यार्थी की कैटल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, उससे देखकर लिख लो। नहीं मास्टर जी, मैं नकल करके स्पेलिंग सही नहीं करूंगा। नकल करना आचरणहीनता के अंतर्गत आता है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर श्रीमान जायस का कक्षा में आगमन। वे निरीक्षण करते हुए कक्षा में एक राउंड लेते हैं और इंस्पेक्टर अंग्रेजी के सभी शब्दों को ठीक से लिखे होने पर बच्चों की तारीफ करते हैं। I am glad to see that students have written most of the words correctly. Well done, everyone. थैंक यू सर। इंस्पेक्टर के चले जाने के बाद सभी बच्चे अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं। मोहन, तुम अभी रुकोगे? जी मास्टर जी। मोहन, मैंने तुमसे कहा भी था कि अपनी कैटल की स्पेलिंग सुधार लो, परंतु तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया एवं विद्यालय की छवि को धूमिल किया। मास्टर जी, नकल करना चोरी करने या धोखे देने जैसा है। मेरी अंतरात्मा ने आपकी इस आज्ञा का पालन करने का मुझे आदेश नहीं दिया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मोहनदास, तुम आगे चल के बहुत ही योग्य, कर्मठ एवं आदर्शशील व्यक्ति बनोगे। यही बालक मोहन आगे चलकर राष्ट्रपिता की उपाधि से नवाजे गए। इन्होंने देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी ख्याति अर्जित की। सच ही कहा गया है, एक छोटा बालक गीली मिट्टी के समान होता है। बचपन में उसे जिस सांचे में ढाला जाता है, अर्थात जैसे संस्कार दिए जाते हैं, वह बड़ा होकर वैसा ही बनता है। आज के दौर में कितनी ही परीक्षाओं के स्थगित होने का कारण नकल माना जा रहा है। आधुनिक पीढ़ी को यह समझना होगा, सफलता अर्जित करने के लिए नकल नहीं वरन अधिक परिश्रम करके ख्याति अर्जित करना होगा। Now we are going to learn about Mahatma Gandhi and his lessons of peace and non-violence. Let's travel back to Gandhi's childhood. In a garden, Mohan was reading a book under a tree while his other friends were engaged in playing. Hey Mohan, want to play with us? Sure, but let's play a game that does not involve fighting. Oh, come on, that's no fun. We want to be warriors. But what if we could be a peace warrior instead? We can pretend to solve the problems without fighting. Peace warriors? What do you mean by that? We can use our words to settle disagreements, like how my mother teaches to all the solution to solve all the solution. Really? Does that work? Yes, words can be more powerful than swords. What? Words are more powerful than swords? How are we supposed to solve our problems then? We are talking about solving the problems with words instead of fighting. That's a wonderful idea, Mohan. Can you give us an example? Well, if Asha and Ravi disagree on a game, they could talk it out instead of arguing. Like asking each other what game we want to play. And we could also combine our ideas. Exactly. Communication is the key. Mohan, how did you learn this? My mother taught me to listen and understand others. It can help us to find a solution together. So being a peace warrior means caring for others' feeling. It's all about empathy. When we understand each other, we create peace. We all are learning important lessons today. Being kind and respectful can change the world. So, let's be peace warriors in our games from now on. Yes, we can invent each other's. Together, we can spread the message of peace. Let's come and play peaceful games. And so, young Gandhi and his friends learned that peace begins with understanding. Let's carry this lesson forward. महात्मा गांधी जी का कथन है, जो लोग देश सेवा करना चाहते हैं उनके लिए सभी कार्य एक समान होते हैं। सेवा करने वाले के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जीवन के किसी मोड़ पर कब क्या करना पड़ सकता है
इससे कोई भी परिचित नहीं। सोना जितना अधिक जलता है वह उतना ही अधिक चमकता है। कोयले की खदान से ही तो हीरा निकलता है। कभी अखबार बेचने वाला निर्धन बालक अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए। व्यक्ति महान तभी बनता है जब संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करता है। तभी तो कहा गया है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, यह तो बस बड़े काम की शुरुआत होती है। एक दिन गांधी जी के आश्रम में एक युवक आया और उसने देश सेवा की इच्छा प्रकट की। प्रणाम बापू, मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ। मेरी यह तीव्र इच्छा है कि मैं आपके साथ इस आश्रम में रहकर देश सेवा करके ख्याति अर्जित कर सकूं। मुझे इस आश्रम में रहने का मौका दीजिए। अरे वाह, तो ठीक है, मैं भी चरखा चला रहा हूँ, तो तुम ये सूत इकट्ठा कर दो। जो आज्ञा बापू। युवक जल्दी जल्दी सूत एकत्रित करने लगता है। बापू, मैंने सूत इकट्ठा करके डलिया में रख दिया। कुछ जूठे बर्तन रखे हैं, उन्हें धो दो और लगे हाथ आश्रम की सफाई भी कर दो। जो आज्ञा बापू। इस प्रकार गांधी जी उस लड़के से छोटे छोटे कार्य करवाने लगते हैं। कुछ दिन बीतने पर वह युवक गांधी जी के पास वापस जाता है। बापू, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे, तुम तो इतने उत्साहपूर्वक यहाँ रहने को आए थे, क्या हुआ? इतनी जल्दी ही उकता गए? मैं एक पढ़ा लिखा युवक हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, और ये जो काम आप मुझसे करवा रहे हैं, ये काम मेरे लिए सही नहीं है। सही नहीं से तुम्हारा क्या आशय है? मेरे स्तर का नहीं है। ये छोटे छोटे कार्य तो कोई भी कर लेगा। बेटा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। देशभक्तों के लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, वे तो सारे कार्य पूर्ण तल्लीनता के साथ करते हैं। देशभक्त सिर्फ देश की सेवा करते हैं। सचमुच गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। कक्षा में थोड़े से कागज बिखर जाने पर हम उसे उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ते, वरन मैंने कूड़ा नहीं फैलाया इसी जिद पर अड़े रहते हैं। थोड़ी ही देर में एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते। वहीं जापान जैसे देशों में पूरे विद्यालय की स्वच्छता का दायित्व वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी ही उठाते हैं। शौचालय से लेकर कक्षा की सफाई की जिम्मेदारी विद्यार्थी ही तो निभाते हैं। तभी तो आज एक छोटा सा देश जापान विकसित देश बन गया है और हम अभी भी विकासशील हैं। सरहद पर बंदूक धारण करके देश की रक्षा करना ही देश सेवा नहीं होता, वरन छोटे छोटे कार्यों को सुचारू रूप से करके वह दूसरों के कार्यों में विघ्न ना डालकर भी हम देश सेवा का भाव दर्शा सकते हैं। किसी भी समाज की संस्कृति, किसी भी समाज की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। किशोर युवा एवं युवा वर्ग राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति एवं कर्णधार होते हैं। कहा जाता है, बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण में परिवार, समाज और विद्यालय का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आज के बदलते परिवेश में विद्यार्थियों में बढ़ता आक्रोश, हिंसात्मक वृत्ति, बदले की भावना, उतावलापन अत्यंत चिंतनीय विषय है। संवेदन शून्य बन रहे चंद किशोर युवाओं को बदलाव की जरूरत है। आज विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षक समाज के लिए बढ़ती आचरणहीनता एक गंभीर विषय बन गया है। करुण क्रंदन करता आहत हृदय गांधी जी का स्मरण करते हुए कह उठता है, माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हैं हम, हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। हमारा भारत जो एक समय पर पूरे विश्व को
शांति, बंधुत्व और अहिंसा का पाठ पढ़ाता आया है। क्या यही है उस भारत की 21वीं सदी की युवा पीढ़ी जो कि इतनी उग्र, असहिष्णु और संवेदन शून्य हो गई है? प्यारे बच्चों, तुम सभी क्यों झगड़ा कर रहे हो? तुम सभी की यूनिफॉर्म देख के लगता है कि एक ही विद्यालय के विद्यार्थी हो। We are from the same school, but who are you? And why are you interfering in between us? Well, I see you all speak English very fluently. Thank you, sir. आपने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। आप कौन हैं? आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आपसे मिलती जुलती फोटो हमने अपनी किताबों में देखी है। सर, आपने स्मृति कोश पर और जोर तो डालो। अरे, ये तो कुछ महात्मा गांधी जैसे लग रहे हैं। अरे बच्चों, यह गांधी लग नहीं रहे हैं, यह गांधी जी ही हैं। हाश, at least you all recognized me. देखो बच्चों, तुम सभी अभी थोड़ी देर पहले तक झगड़ा कर रहे थे, किंतु जैसे ही मैं आया तुम सभी का ध्यान डाइवर्ट हो गया और झगड़ा बंद हो गया। वैसे ही कभी भी जीवन में क्रोध आने पर या कुछ अप्रिय वचनों को सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। बच्चों, मेरी आयु मुझे ज्यादा देर तक खड़े रहने की इजाजत नहीं देती। रुकिए बापू, हम आपके बैठने का प्रबंध अभी करते हैं। अपनी दिनचर्या में योगासन और मेडिटेशन को सम्मिलित करना चाहिए। जब किसी पर भी क्रोध आए, वहां से ध्यान हटाकर किसी दूसरी जगह ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाँ, 100 तक की उल्टी गिनती करना भी एक विकल्प हो सकता है। उल्टी गिनती शुरू और क्रोध गायब। बापू, सर्वप्रथम आपको शत नमन। हम आपको पहचान नहीं पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जी बाबू, हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। आपने क्रोध भगाने के जो तरीके बताए हैं, हम उन्हें अवश्य अपनाएंगे। बच्चों, जिस प्रकार प्रत्येक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ होता है और उसकी देश की हीनता और गौरव दोनों का फल देश को ही ना जाकर उसका भी होता है, ठीक वैसे ही अपने विद्यार्थी जीवन में हम अपने विद्यालय के साथ बंधे हुए होते हैं। कोई भी अनैतिक कार्य करना विद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है और हमें भी शर्मसार करता है। Yes, Bapu, we have understood your teachings. We will follow all your ideas very sincerely. अहिंसा परमो धर्मा इस शिक्षा का पालन करेंगे और कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। अपनी वाणी द्वारा किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। We will use civilized language. If we commit any mistake, we will apologize for it. बच्चों, भारत आज एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत आज विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। यहाँ तक तो भारत ने चांद पर भी तिरंगा लहराया है। भारत की इन सभी उपलब्धियों को सुनकर मेरा मन तो प्रफुल्लित हो गया। बस इसीलिए अपने उन्नतशील देश को देखने चला है। यह सब तो देखा, किंतु देश का एक नकारात्मक पक्ष भी देखा, जिससे मेरा मन बहुत आहत हुआ। हम संकल्प लेते हैं, हम दया, सहानुभूति, विनम्रता एवं अनुशासनशीलता जैसे गुणों से स्वयं को समृद्ध करें। बच्चों, अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा आशीर्वाद और प्यार। आप हम सभी से मिलकर जल्द ही आइए।
The portrayal of Bapu's life and values was very enlightening. Next, we have Mokshita of 11C to deliver a speech on Lal Bahadur Shastri to reflect on his unforgettable teachings and principles. A very good morning everyone. While the nation celebrates 2nd October as the birthday of the father of the nation, it is often not remembered that the second Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri, too was born on this day. Lal Bahadur Shastri is often referred to as quintessential Gandhian. During his long political career, which began in Allahabad municipality and ended with the highest office of the land, Prime Minister of India, Shastri left an indelible stamp of his identity. Shastri handled the Pakistani actions with tact, firmness and quiet determination, securing the support of political leaders, bureaucracy as well as the armed forces. Many consider his permission to the army to enter Pakistan to destroy key military installations as the first surgical strike launched by India. As a Prime Minister, he led a life of simplicity, honesty and integrity. He led India through the 1965 Indo-Pakistani War and Tashkent Agreement. His slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, vibrated across the country and united the people to fight the challenges it faced. He championed the Green Revolution, transforming India's agriculture. Shastriji's vision for India's progress was remarkable. His modesty and humility earned him international recognition, and he was posthumously awarded the highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1966. Let us honor his memory by embracing simplicity, honesty and selfless service. His legacy inspires us to strive for a better India. We pay a humble tribute to Shastriji. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Hind. Thank you, Mokshita, for your insightful oration addressing the values of our empowering leaders. Let's carry these reflections in our heart as we move forward with a documentary prepared by very talented Navdeep Singh, Aditi Dixit and Aditya Tripathi that delves into the life and legacies of Gandhiji. An exuberant morning to one and all present here. In 1917, in a small town in Bihar called Champaran, a movement began that would change the course of Indian history. A humble request from a peasant sparked the revolution of non-violence, led by none other than Mahatma Gandhi. This is the story of that turning point, the Champaran Satyagraha. During the 1916 Congress session, Rajkumar Shukla met Gandhiji. Shukla was an illiterate but resolute sharecropper from Champaran. He was desperate, pleaded Gandhiji to visit his town and witness the exploitation faced by indigo farmers. Despite Gandhi's prior commitments, Shukla's persistence led Gandhiji to Champaran. In Champaran, Gandhiji discovered the severe exploitation of peasants by British landlords. Under a draconian system, farmers were forced to grow indigo on 15% of their land and surrender the entire crop as rent. When synthetic indigo was developed in Germany, the landlords tricked the peasants into signing exploitative compensation agreements. Gandhiji knew this was an injustice that required more than just legal battles. It needed a movement. Gandhiji's arrival in Champaran marked the beginning of India's very first civil disobedience movement. He refused to obey British orders to leave Champaran. His determination inspired peasants.
who gathered in large numbers, and even the British administration felt powerless without his cooperation. When summoned to court, Gandhiji openly defied the authorities, pleading guilty, but asserting the higher duty of serving his people. Gandhiji's approach wasn't just legal or political. It was about liberating the people from fear. He worked with local lawyers and peasants to document the injustices and expose the British landlords. After months of inquiry and negotiations, the British were forced to refund the exploited peasants, a symbolic victory that showed the power of collective resistance. But Gandhiji's work didn't stop at securing justice for the farmers. He saw the social and cultural backwardness in Champaran and immediately took steps to improve the lives of the villagers. He set up schools, taught the rules of sanitation, and brought in doctors. This was the essence of Gandhi's leadership, blending political action with social upliftment. The Champaran movement was more than a victory for India's peasants. It was a turning point in Gandhi's life and the nation's fight for freedom. It demonstrated that the British could be challenged and that real change came from standing up with courage and self-reliance. Champaran was not just a revolt, it was the beginning of India's liberation. Thank you. Thank you, Navdeep, Aditi, and Aditya for your insightful presentation that has inspired us all to reflect on how we can adopt Gandhiji's values in our daily lives. Our talented choir team is now here to uplift our spirits with bhajans devoted to our dear Bapu. साबरमती में संत तुम्हें कर दिया।
What an overwhelming performance! Thank you to our choir for their soulful rendition. Your voice truly resonates with the spirit of hope. Now we are about to have the surreal experience of listening to Mahatma's favorite bhajan, Vaishnojam, played by our school orchestra.
to inspire and bring people together is truly remarkable. It reminds us of the spirituality that Gandhiji championed. One special passion with Dr. Alok is the transformational process of the mind to enhance inner harmony and peace, as Mahatma Gandhi remains his leitmotif and example. In the age of violence, seeping down to collective and individual level, our young generation needs to be exposed to better ways of living. Dr. Alok is the curator of an interactive program, An Hour with the Mahatma, focusing on the transformative skills of Mahatma Gandhi. It focuses on the alternatives to violence and cruelty that he has successfully experimented, providing a transformative model. May I now request Dr. Alok Bajpai to kindly come forward for the interaction we all have been eagerly waiting for. I think it's okay. Thank you, Shobha ji, for calling me again. And good morning. पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोल दूं, ये जो आप लोगों ने 30-40 मिनट जो किया है, दिस इज द होप फॉर दिस कंट्री, क्योंकि आई कुड सी योर पैशन बिहाइंड इट. और होप ये है कि जितना यहाँ पे दिखाया गया, अगर उसका 50% भी आपने अपनी जिंदगी में कर लिया, देखने वालों ने और करने वालों ने, तो हिंदुस्तान का भविष्य अच्छा है. कुछ करेक्शंस मैं कर देता हूँ, राइट? कर दूँ, थोड़ा हिस्ट्री भी सेव हो जाएगी. एक्चुअली गांधी जी का नाम क्या था? राइट. करमचंद उनके पिता थे, मोहनदास वो खुद थे, और कई टाइटल मिले उनको लाइफ में, बापू और महात्मा और सेंट और वगैरह वगैरह. उनके खुद के दिए टाइटल नहीं थे, बाय द वे, राइट? जैसे महात्मा उनको टैगोर ने कहा था, बापू किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने. वही बोस है जिनसे लोग कहते हैं कि गांधी ने जिनको, समझ गया ना फर्क क्या है? एक आदमी उनको बापू कह रहा है और प्रेजेंट टाइम में लोग कह रहे हैं कि गांधी ने गलत किया था उनके साथ. बट दैट इज हाउ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स गोज. सो टुडे वी लीव द पॉलिटिक्स बिहाइंड एंड वी लीव ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स बिहाइंड. ऑलराइट. गांधी का पहला टाइटल था स्टूपिड. वो किसने दिया था? वो उसी टीचर ने जिसको आपने दिखाया कि बड़ी शाबाशी दे रहे थे. वो कोई शाबाशी उन्होंने नहीं दी थी, उन्होंने कहा था स्टूपिड हो तुम. दैट वाज हिज फर्स्ट टाइटल. बट गांधी रिमार्केबली हैड नो रिग्रेट्स फॉर नॉट चीटिंग. उस छोटी उम्र में 7-8 साल की उम्र रही होगी उनकी, गांधी को उस समय भी कोई सत्य बोलने पे और चीटिंग ना करने पे कोई रिग्रेट नहीं था. इनफैक्ट ही वाज वेरी प्राउड कि मैंने ईमानदारी करी है. ये लेसन तब से चल रहे थे. मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने इजी पार्ट ऑफ लाइफ देखी है. अभी शांति रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, ये सब करना चाहिए. बिल्कुल जो आज यहाँ से मैसेज गया है वो सत्य है, वही करना चाहिए. रियलिटी चेक ये है कैसे करेंगे. इसमें से कौन सी ऐसी बात थी जो आपको पता नहीं है अब तक? था कुछ ऐसा नया? नहीं था ना? फिर भी आप ट्रैफिक देख लीजिए गुमटी में, फिर भी आप अखबार पढ़ लीजिए, सबको पता है कहां है. तो रियलिटी चेक ये है कि गांधी बनना कैसे है. गांधी नहीं बनना है आप सबको. प्लीज डोंट फॉलो हिम, follow yourself. But even to follow yourself you have to know some process. जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, 10वीं 12वीं तक पढ़ाई करेंगे, कुछ सब्जेक्ट सीखेंगे,
फिर अपना जेई नीट वीट जो भी आपको ज़िंदगी में करना है, तो आप जब क्लास 1 में आए थे तब आपको ये सब प्रोसेस नहीं पता थी, है ना? प्रोसेस आपको पता चलती है, फिर आप बीटेक करेंगे तब अलग प्रोसेस पता चलेगी, सो ऑन सो फोर्थ। ये तो सब्जेक्ट है, जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट से जो आप सीखते हैं, लेकिन आदमी बनने की प्रोसेस तो सबकी एक, वो अफ्रीका में हो, आप उड़ीसा में हो, अमेरिका में हो, हिंदुस्तान में हो, गरीब हो, अमीर हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, दैट ऑल इज इमटेरियल स्टफ। बेस लाइन में एवरीबडी हैज टू बी अ ह्यूमन फर्स्ट, राइट? लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई क्लास नहीं होती उसकी, मुझे तो नहीं पता होती। सिर्फ एक मॉरल साइंस होती थी ना बचपन में स्कूलों में, आप तुम लोग में होती है क्या? पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग, होती तो सब है। वही कॉपी सबसे बाद में इस्तेमाल आती है। जो सिविक सेंस होता था कि सड़क कैसे क्रॉस करनी है, राइट? सिविक्स कहते थे उसको मेरे ख्याल में हम लोगों के समय में। बट नेवरदलेस वो सब महत्वपूर्ण बातें नहीं कि आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं। सवाल ये कि जिस गांधी को हम लोग जानते हैं, गांधी जरूरी क्यों है? आप जरूरी नहीं कि कल 2 अक्टूबर है, जरूरी नहीं कि गांधी के बारे में बात करें आप, कोई नहीं कह रहा आपसे, फिर भी जरूरी क्यों है? एक गाना बज रहा था ना, आप लोग भी गाया था, किसी बच्चे ने 2 लाइनें पढ़ी थी तुमने, शायद मुन्ना भाई की थी ना। तो मुन्ना भाई की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फिर से आ जाओ, कि फिर से अभी तो आप आ जाए कि ना आ जाए महत्वपूर्ण बात नहीं है, गांधी के स्वरूप में तो नहीं आएंगे वापस, लेकिन ये देश और ये दुनिया मेरे ख्याल से गांधी को 20 साल बाद ढूंढेगी। और ये मैं आपको अगले 15-20 मिनट बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा सोचने के लिए। गांधी जरूरी क्यों है? जरूरी है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, जरूरी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने बुला लिया मुझे बोलने के लिए, इसलिए, और कल 2 अक्टूबर है इसलिए, है ना? इसलिए जरूरी नहीं है बिल्कुल। गांधी जरूरी इसलिए है कि जब आप कुछ सीखना शुरू करते हैं, आप लोग सीखते हैं किससे? किताबों से ना। तो किताबें आपने तो लिखी नहीं है, पहले से किसी ने लिखी है, तो आप उससे नॉलेज लेते हैं। तो हमें भी जब सीखना होता है, तो तब अगर आप ब्रेन समझिए और डेवलपमेंट समझिए, तो जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर 16, 17, 18 साल तक जो जो आपके एक्सपीरियंस हो रहे हैं लाइफ में, या जो आपको सिखाया जा रहा है, वही आपका ब्रेन डेवलप कर रहा है, जिससे आपके 17-18 साल में थोड़ा पर्सनालिटी का फॉर्मेशन शुरू होता है। अब लोग कुछ कहते हैं कि आदमी जैसा है वैसा पल जाता है, जेनेटिक्स होती है। कुछ तो जेनेटिक्स होती है कि आपकी बायोलॉजी से आपका शक्ल अकल इंटेलिजेंस, पर लार्जली आदमी बनता है अपनी कंडीशनिंग से। कंडीशनिंग मतलब जो जो आपको सिखाया गया है, वो इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन कैसे प्रोसेस कर रहा है, उससे आप इंसान बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए साइंस कि आदमी कैसा बने, उसमें चॉइस होती है। गांधी इसलिए जरूरी है कि अगर मैं आपसे कहूं आप राम से सीख लीजिए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, है ना? पूजा तो कर सकते हैं आप राम की, कृष्ण की आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप फॉलो नहीं कर सकते कृष्ण को। मैं तो बड़े लोगों से भी जरा कुछ कहता हूं तो वो बुरा मान जाते हैं, वो कहते हैं भगवान थे, उनकी लीला थी, हम लीला कैसे कर सकते हैं? तो मैं उनसे कहता हूँ वो भी हाथ पैर लेके शरीर लेके आए थे धरती पर, तो काम तो वो कर रहे थे जो ह्यूमन ब्रेन कर सकता है। चलो वो लीला है, वो भगवान है। बुद्ध की बात करो तो लोग कहते हैं कि वो माइथोलॉजी थे, या कुछ हिस्ट्री थी, कुछ माइथोलॉजी थी, तो बचा क्या आपके पास? अब आप अपने लोकल एमएलए से तो नहीं सीखोगे, ये तो मतलब आप सीख सकते हो, अलग चीजें सीख सकते हो उनसे। और मौजूदा ब्रीड ऑफ लोग जो है, तो आपको कुछ ऐसा रोल मॉडल तो चाहिए ना। गांधी इसलिए एडवांटेजियस है कि गांधी अभी माइथोलॉजी नहीं हुआ है, नंबर 1। गांधी हिस्ट्री है,
अपनी कोई फिलॉसफी नहीं लिख गए वो, लेकिन वो 100 वॉल्यूम्स ऑफ राइटिंग उनकी जो कागज़ों पे और चिट्ठियों पे और रद्दी पेपर पे लिख लिख के जो कम्युनिकेशन उन्होंने किया वो सब अवेलेबल है, प्लस हज़ारों किताबें हैं, हज़ारों आर्टिकल जो और लोग लिख रहे थे उनके लाइफ टाइम में। ये नहीं कि बाद में बड़ा महिमा मंडन हो रहा उनके लाइफ टाइम में लिखी जा रही थी। एक वजह तो ये है कि आपके पास अवेलेबल है प्रोसेस ऑफ व्हाट। तुम लोगों में से चेंज कितने लोग चाहते हैं लाइफ में? जो हाथ नहीं उठा रहे वो संतुष्ट और खुश लोग हैं। वाह, चेंज चाहिए ना लाइफ में। गुड। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है? कोई बता सकता है? चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बता? चलो मैं बताता हूं। कानपुर की ट्रैफिक में अगर आप एक पुलिस वाला खड़ा कर दीजिए और वो 2-4 चालान काट दे तो लोग लेफ्ट साइड पे चलने लगेंगे, रेड लाइट पे रुक जाएंगे, ठीक है ना? होता है ना ये पुलिस वाला खड़ा हो जाए तो थूकेंगे नहीं, जो हमारा राष्ट्रीय आर्ट फ्रॉम कानपुर है, स्पिटिंग। लेकिन अगर वो पुलिस वाला हट जाए तो क्या करते हैं लोग? हाँ, फिर वैसे कर लेते हैं। लेकिन बंबई में और जर्मनी में रात में 2 बजे अगर रेड लाइट जल रही है और कोई गाड़ी नहीं है आसपास, कोई गाड़ी, तो भी लोग रोक लेंगे गाड़ी। और इस हद तक कि एक बार जब बर्लिन में रेड लाइट जल रही थी, एक आदमी खड़ा हो गया, वो करीब 11 घंटे खड़ा रहा वो, क्योंकि रेड लाइट खराब थी। वो तो उसने लोगों ने कहा मुझे तो सिखाया ये गया है कि रेड लाइट रुकना, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सटर्नल फोर्स से जो चेंज होता है वो टेम्परेरी चेंज होता है। आप अपने मन के विपरीत किसी भय से, किसी डर से, इस सब से कर सकते हैं आप, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से आता है। तो गांधी वॉज अ मास्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप बहुत पढ़ते होंगे सेंटेंस, बी द चेंज यू वांट टू सी, ये एक्चुअली गांधी ने उतना कहा नहीं था, पर नेवरदलेस ही वाज अ मैन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जिस गांधी को हम लोग जानते हैं वो गांधी था करीब 60 साल की उम्र का गांधी, when he was around 60. Before that his life was what? What was his autobiography? My experiments with truth. Experiment, वो किताब का नाम ये भी लिख सकते थे ना, I know। आजकल बहुत लोग लिखते हैं ऐसी किताब, इन माई एक्सपीरियंस, मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो एक्सपेरिमेंट और मुझे पता है में क्या फर्क होता है? साइंस पढ़ते हो बच्चों? एक्सपेरिमेंट करते हो? हाँ, तो एक्सपेरिमेंट का एक्चुअली क्या होता है? क्या एक्सपेरिमेंट में उसका रिजल्ट क्या होता है? क्या नाश्ता करके नहीं आते हो तुम लोग? एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है, सफल भी हो सकता है, राइट? आई नो एक प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूं आई नो, दैट मीन्स मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। और अगर तुम कुछ कहोगे मुझसे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, बट इट इज एक्चुअली व्हाट आई नो, दैट इज द ट्रूथ, है ना? एक्सपेरिमेंट में आप फेल भी हो सकते हैं। तो गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी व्हेन ही वाज 57 and all his life he was experimenting। तो ये कहानियां जितनी आपने भी बताई हैं, प्रेम करो, अहिंसा करो और सत्य बोलो, और ये सब कोई ऐसा नहीं था कि वो पंसारी की गए मॉल में एक डब्बा खरीदा अच्छे वर्च्यूज का, वो घोल के शाम को पी गए और अगले दिन से महात्मा गांधी बन गए। ना, ये सब भ्रम है। गांधी ने 11 साल की उम्र में थोड़ी सी चोरी करी थी। तो इतने अच्छे बच्चे थे नहीं, बाय द वे, सब बदमाशी करते सब, क्योंकि एक था, मतलब ये जो लोग कहते हैं ना कि गांधी थे वो तो
कहता हूँ गांधी हम ही लोगों जैसे थे, ये जितने बच्चे हैं ऐसे ही थे वो। तुम लोग तो बड़े बहादुर बच्चे हो, तो डरपोक थे, लाइट जला के सोते थे वो, तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी क्योंकि डर लगता था, हर चीज से तो डर लगता था उनको। और ये डर बड़ी देर में खत्म हुआ, मतलब बचपन में उनकी मेड थी, उसने कहा था राम नाम लिया करो तो डर खत्म हो जाए। कोर्ट में बेहोश हो गए थे पहली बार जब गए, थोड़ा एंजाइटी, लेकिन ये कुछ तो गड़बड़ थी उस आदमी में पैदाइश से, वो भूलता कुछ नहीं था। जो भूलता नहीं था और जिस चीज से तकलीफ हुई होती थी, he remembered all that. And when he became a leader and when he could change things, he changed it. Like for example, अपने भाई के कड़े से कुछ एक लोन ले लिया था उनके भाई ने, इसको खुरच के सोना बेच दिया उसका लोन चुकाने के लिए, but he could not tolerate it. तो अपने पिता को एक पत्र लिखा उन्होंने कि मैंने चोरी करी है अब ये से। तो पिता बिस्तर पे थे। आप लोग अपने माँ बाप को अगर अब तो आज तक पत्र तो लिखते ही नहीं होगा, तुम लोग आते ही नहीं ना, व्हाट्सएप कर लो, चलो एक व्हाट्सएप पे लिखो कि मैंने चोरी करी है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा घर में? क्या होगा? सुताई होगी, हो सकता है खाना ना मिले, हो सकता है घर में माँ बाप की लड़ाई हो जाएगी, ऐसे पाला है तुमने, ये तो पीटीएम के बाद होता नहीं। हर पीटीएम के बाद जो हिंसा घरों में होती है वो बिल्कुल अनसरपास्ड है। बच्चे भी 2 पीटीएम के बाद छोटे से, वो छोटे बच्चे जो बोल रहे हैं ना अभी, वो भी 2 पीटीएम के बाद सीख जाते हैं बिहेव कैसे करना है, कि आज के दिन डक करके सरवाइव कर जाओ, कल फिर आएगा मौला तब देख लेंगे। आज हो सकता है खाना न मिले, हो सकता है माँ बाप की लड़ाई हो जाए, हो सकता है, तो तुम लोग की उम्र तक तो पक्के हो चुके हो तुम लोग, क्या पीटीएम और क्या कुछ भगवान सामने खड़े हो जाए उनको भी तुम लोग घुमा सकते हो। लेकिन एवरेज अगर ऑनेस्टी से आप जाके अपने पिता से, माँ से, टीचर से बोलिए कि मैंने चोरी की है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा? हाँ क्या कह रहे थे? जोर से बोलो एक आदमी भाई। हाँ क्यों करी? पर वो गांधी जी के पिताजी थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा रोए। वो 11 साल के थे गांधी, मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटेशन बता रहा हूं उनका, 11 साल के थे वो। अहिंसा का पहला लेसन था उनका, और झूठ ना बोलने का पहला लेसन था। 11 से आदमी 78 में मरता है और कोई उनके दुश्मन भी नहीं कह सकते कि गांधी ने झूठ बोला हो कुछ। राइट? हाउ डज द ऑनेस्टी? नो, इट इज नॉट अबाउट दैट ही फेल्ट लाइक दिस की ऑनेस्ट, टू रिमेंबर फॉर 60 years कि मैंने वादा किया है अपने आप से ऑनेस्ट होने का। ये वहां से शुरू हो रहा है। एक अनटचेबल दोस्त था उनका, उका नाम का, उसके साथ खेलते थे वो, और पुतली बाई उनकी माँ थी, बड़ी रिलीजियस औरत थी, वो उनको हर बार कहते थे नहाओ। और गांधी को बड़ा रिबेल होता था, रिबेलियस बच्चा था वो, क्या ये क्यों? तुमसे भी मना किया जाता है, गुस्सा होते हो ना, है ना? माँ कहती है टीवी मत देखो यार, एग्जाम में करो, अब देख लेंगे, हमें पता है। गांधी को भी होता था, नेचुरल है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ह्यूमन ब्रेन, हिज ब्रेन वाज लाइक अस, सो देयर वाज नो डिफरेंस इन दैट। और रिबेल करते थे वो। आप सोचिए, ये मैं बचपन की कहानी बता रहा हूँ उनके, और 1931 में गांधी ने जब एक फास्ट किया था पुणे में, बड़ा एपिक फास्ट कहते हैं जिसको, उसके बाद उन्होंने मंदिर खुलवा दिया था अनटचेबल्स के लिए। अगर गांधी ना होते तो आज भी 70 साल बाद भी मंदिर ना खुले होते अनटचेबल्स के लिए। लोग सोचते हैं बहुत बड़ा कुछ काम था, मैं कहता हूं वहां से देखो जहां से शुरू हो रहा था। राइट? अब ये देखिए, ऑनेस्टी और ट्रूथ और ये सब चीजें चल रही थी दिमाग में। ये सब एक्सपेरिमेंट्स थे गांधी के, हजारों बार गिरे, हजारों बार फेल हुए, लेकिन एवरी फेलियर वाज अ लेसन। दैट इज महात्मा गांधी, एंड दैट इज व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो साइंस लेकर गए हैं कि हाउ टू बिहेव एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू। भारत की प्रॉब्लम क्या है?
आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है गांधी? आप सोचिए अतीत की कहानी, एक आदमी करके चला गया, हो गया। 2 अक्टूबर कोई गाने नहीं गाओ, खुश रहो, किस्सा खत्म। क्या बुराई? बहुत सारे संत आगे चले गए, ये है नहीं। There is a truth behind it. गांधी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why? इस कंट्री का प्रॉब्लम क्या है? कोई बता सकता है? बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन कोर में कुछ प्रॉब्लम है ना। उन प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम बन गई, फिर और बड़ी प्रॉब्लम बन गई, और बड़ी प्रॉब्लम बन गई। कोर की प्रॉब्लम मालूम है क्या है जी? हाँ, माइंडसेट तो है, सभी कुछ माइंडसेट है बच्चे। तो माइंडसेट में क्या? कंजर्वेटिव तो है, राइट। दैट गांधी ब्रोक इन हिज टाइम, ही वाज प्रीटी मॉडर्न बाय दैट सेंस। हाँ, तो ये सही है। तुम लोग जो देख रहे हो दुनिया में कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्सी, ये सब तो है। ये भी इसके भी नीचे कुछ है। इनडिसिप्लिन, यस। करप्शन, कोर तक गुस्सा हुआ। लेकिन मैं बताऊं ये सब क्यों है? इसके भी नीचे लेयर में चले जाओ। जब साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, ये साइंस है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन तक चले जाओ दिमाग के, और नीचे आ जाओ एक लेवल। चलो मैं पूछता हूं तुमसे, जब वो जिद करके अपनी कास्ट से आउटकास्ट करके भी इंग्लैंड पढ़ने जा रहे थे, तो उनकी माँ ने उनसे कहा था कि विदेश मत जाओ, वहां पे सब बिगड़ जाते हैं। उनका वादा करो, मांस नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, और गोरी लड़की से दोस्ती नहीं करोगे। और जो उस समय की सोच थी, आप उसको एंटी फेमिनिस्ट कह सकते हैं, बट दैट वाज अ थॉट ऑफ अ लेडी हु वाज अ रिलीजियस लेडी इन गोल्डन टाइम्स। ये आदमी जाता है इंग्लैंड, शुरू में कोशिश करता है अंग्रेजों जैसा बनने, फिर एक दिन झटका खा के उठ जागता है कि ये तो मेरा काम नहीं है, तो पैसे भी नहीं मेरे पास, राइट। शाही आदमी था, वेजिटेरियन फूड खाता था, वेजिटेरियन फूड मिलता नहीं था, पैसे थे नहीं, पैदल चलना पड़ता था ये। और 3 साल में उन्होंने तीनों वादे पूरे किए अपने, ठीक है। तुम लोग अपने कितने वादे पूरे करते हो पेरेंट्स से? पेरेंट्स को छोड़ो, अपने आप से किए हुए कितने वादे पूरे करते हो? बहुत मुश्किल काम है ना? टाइम टेबल बनाया हुआ था, बचपन में बनाया होगा, अब तो होता ही नहीं कोई टाइम टेबल तुम लोगों का। था टाइम टेबल? कितने लोग अपना टाइम टेबल फॉलो कर लेते हो ऑनेस्टली? नहीं, देखो तुम लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, ऑनेस्ट हो, कम से कम हाथ नहीं उठा रहे। हाँ, बड़े लोगों से पूछो, तो बड़ों की महफिल में भी करता हूँ कभी गांधी, मैं पूछ लेता हूँ कौन कौन करप्ट है, तो कोई हाथ नहीं उठाता। मैं फिर मान लेता हूँ सब करप्ट है, सब करप्ट है, तो कोई हाथ नहीं उठा रहा। वो 2 बच्चों ने हाथ उठाया पीछे, लेकिन आप लोग ऑनेस्ट हो, आपको मालूम है अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, अपना कमिटमेंट है, अपना टाइम टेबल है, फॉलो नहीं कर रहे उसको। इसको क्या कहते हैं? ये है बेस लाइन में माइंडसेट, ये माइंडसेट है। जानते हो क्या एक क्वालिटी होती है, कहते हैं उसको अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। नोबडी इज अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। अपने काम के लिए कमिटमेंट नहीं है। अमेरिका से कॉम्पीट करना है आपको, लेकिन ये नहीं देखते कि अमेरिकन 9 से 5 तक चिपक के बैठता है, सब काम ईमानदारी से करता है, और आप उससे कहें थैंक यू आपने मेरा काम कर दिया, जैसे भारत में नहीं है, अरे सर आपने बड़ा काम कर दिया। अमेरिका में करके देखो, वो कहेगा मैंने क्या कर दिया, दिस वाज माय जॉब, बट आई विल नॉट डू दिस आफ्टर 5 o'clock। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। आपने दिखाया ना कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, दैट इज डिग्निटी ऑफ लेबर। कोई काम छोटा नहीं होता है। तो गांधी ने अकाउंटेबिलिटी डेवलप कर ली इंग्लैंड में, टर्निंग लॉस टू अपॉर्चुनिटी। पैसे नहीं थे तो पैदल चलने की वो बात तक काम आती रही, कितने बड़े बड़े मार्च किए, दांडी मार्च किया, ये किया वो किया। तो ये गुण आदमी डेवलप कर रहा था, और वो शाइनेस थी ना, जो बोलने की दिक्कत थी, उसने गांधी को कमाल का स्पीकर बना दिया। एवरी वर्ड ही थॉट ऑफ spoke was well thought of. In the fact, somebody calculated in a round table conference कि एक दिन में करीब 87,000 वर्ड बोले गए, 87,000. गांधी spoke for 1 hour, 57 words per minute.
कैलकुलेटेड परफेक्ट वर्ड्स। और मंडे को वो रखते थे साइलेंस, क्योंकि अपनी भी तो प्रोसेस करनी होती थी। ये सब गांधी के एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे थे, लेकिन ये सब छोटे एक्सपेरिमेंट्स थे। बड़ा एक्सपेरिमेंट उनका जो हुआ वो साउथ अफ्रीका में हुआ, एंड दैट इज फ्यूचर फॉर यू। इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? करप्शन भी देखो, गांधी करप्ट आदमी होते तो अपने बच्चों को वहीं गवर्नर बना देते, कुछ बना देते, कुछ नहीं किया। गांधी का घर मालूम है कहाँ था? नाम पता है? शाहरुख के घर का नाम पता है? मन्ना था। बच्चन साहब ये कानपुर में चले जाओ, हर अरे गहरे नत्थों गहरे की नेम प्लेट लगी बड़ी बड़ी, द्विवेदी, शर्मा, चड्डा, कुशला, कौन पूछ रहा? मिट जाएंगे समय के साथ। गांधी जी के घर का क्या नाम था? पागल था आदमी, पता है? उनका घर था कोई, पहले तो ये बता दो मुझे। आश्रम उनके नहीं थे, आश्रम तो लोगों ने दे रखे थे। तो साबरमती छोड़ दिया था उन्होंने, वर्धा में जमुनालाल बजाज ने दिया था। He did not have a house. Seriously. I mean, he was in a position कि अगर वो माउंटबेटन अंग्रेजों से कहता है कि मुझे राष्ट्रपति बना दो इस देश का और जाओ, तो अंग्रेज खुशी खुशी उनको राष्ट्रपति बनाते, उनके बच्चों को गवर्नर बनाते, कहते लो भैया देश चले हैं। He was in such a position, क्योंकि एक इशारे पे 20-30 करोड़ आदमी उनके पीछे चल देता था और लोग कुछ ना कहते, कुछ लीडर्स को छोड़ के लोग कुछ ना कहते, बट ही डिड नॉट डू इट। अभी भी आप उनके आश्रम में भी जाइएगा, वर्धा और साबरमती, तो वो एक लाठी, किताबें, कुछ एक घड़ी, यही सब छोड़कर सामान जो आप फेंक देते उठा के। तो करप्ट तो था नहीं, अकाउंटेबल आदमी था, बट दैट इज ऑल बाय द साइड। दैट ऑल इज इम्पॉर्टेंट बाय द वे। आप जिंदगी में कोई भी काम करेंगे, जो बड़ा गेम था, जो भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। सारी दुनिया की समस्या क्या है इस वक्त? अरे यार, तुम लोग को दुनिया की समस्या नहीं पता। ये तो कानपुर में है, कानपुर में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको दुनिया की समस्या नहीं पता, अपने लोकल मस्त है। एनीथिंग। अरे कुछ बोलो बच्चों, पीछे वाले बच्चों, क्या हुआ? पावर। तो पावर की लड़ाई में क्या होता है? पॉलिटिक्स से क्या होता है? और क्या होता है? सोचो। अरे तुम लोग भी गांधी गांधी कर रहे हो, तो तुम लोगों को तो पता होना चाहिए ना यार। क्या हिंसा नहीं पता क्या होती? सारी दुनिया की प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? कलकत्ता में वायलेंस हो रही है, इजराइल में वायलेंस हो रही है, यूक्रेन में हो रही है, आपकी सड़कों पे हो रही है, आपके घरों में हो रही है, मेल फीमेल के बीच में हो रही है, अमीर गरीब के बीच में हो रही है। आप कर रहे हो, आपके ऊपर हो रही है। आप समझिए, दिस इज बिग स्ट्रक्चरल वायलेंस प्रॉब्लम। वायलेंस हमेशा से होती रही है, रामायण में थी, महाभारत में थी, बहुत सारी कहानियां बाद में लिखी गई वायलेंस जस्टिफाई करने के लिए। वायलेंस हो गई, कौरव पांडव लड़ लिए, सोसाइटी में तो लोग देखेंगे, क्या करेंगे आप? सब लोग सोचेंगे लड़ना ही इलाज है। आदमी का दिमाग इवोल्यूशन में ऐसा इवॉल्व हुआ है कि वायलेंस इज वन पार्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड, बट द अदर पार्ट इज सैक्रिफाइस एंड ऑल्ट्रुइज्म एंड ऑल दैट। सेम पर्सन कैन बी वायलेंट एंड नॉन वायलेंट, सेम पर्सन कैन सैक्रिफाइस, सेम पर्सन कैन बी वेरी सेल्फिश। ये हम सब ऐसे हैं। आप ये मत सोचिए गांधी कहीं बाहर है, वो आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर दाऊद इब्राहिम भी है, आपके अंदर एडोल्फ हिटलर भी है, आपके अंदर वो क्रूअल आदमी भी है जो दूसरे पे बिल्कुल तरस खाए बिना अपना स्वार्थ देख सकता है, और आपके अंदर वो भी है जो संत बन सकता है। तो जब इतना कुछ आपके अंदर में है, तो दैट मीन्स देयर इज वन सिंगल थिंग विच विल डिसाइड how you want to relate to the world, and that is called choice. Choice. सबके पास चॉइस होती है। अगर एक चीज आपको गांधी से सीखनी है
तो आप चॉइस करना सीखिए उनसे। ये आदमी ट्रेन से फेंका जाता है साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास के टिकट लेने पे, स्टेशन पे रात भर पड़ा रहता है। 2 चॉइसेस थी, कोई देख नहीं रहा था, चुपचाप टिकट कटाते और हिंदुस्तान वापस आ जाते। बट ही डिड नॉट डू दैट। ही सेड आई विल फाइट नाउ एंड आई विल फाइट नॉन वायलेंटली फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द इंडियंस, राइट। अगले दिन गांधी के पास चॉइस थी। तुम सोचो, आदमी मतलब बड़ा प्रैग्मेटिक आदमी रहा होगा, प्रैक्टिकल। अगले दिन मैंने कम रीचेस एक शिरकम होती थी कैरेज, उसमें जाना था, उसमें टिकट लेके इनको बैठने नहीं दिया जा रहा था, फिर वही गोरा काले के चक्कर। तो गांधी जी से उन्होंने कहा कि जहाँ पे वो साइज बैठता है, घोड़ा चलाता है, उसके बगल में एक फुट प्लेट्स थी, उस पर बैठ जाओ। गांधी कुड हैव रिफ्यूज। तो गांधी ने सोचा अगर मैं यही करता रहा, ट्रेन से फेंका गया, शिरकम में बैठूंगा नहीं तो प्रिटोरिया पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा चलो बैठ जाते, बैठ गए। रास्ते में फिर मार पड़ी उनको, क्योंकि एक आदमी ने कहा तुम हटो, मुझे सिगरेट पीनी। तो गांधी ने कहा मेरी जगह है, तो मुझे अंदर बैठने दो। तो उसने इनको मारना शुरू कर दिया। और गांधी बाद में लिखते हैं कि अगर मैं उस वक्त ये डंडा जो था कैरेज का ये ना पकड़ता तो मैं शायद मैं भी हिंसा कर देता। कहते लेकिन उस क्षण मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, मार लो। तो बहुत सारे लोग आजकल जिनको गांधी बैशिंग एक शौक है लोगों का, एक्चुअली जो लोग गांधी को गाली देते हैं ना, वो थोड़ा मानसिक रूप से गड़बड़ है उनका। वो अपने बाप दादा को गाली दे रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि गांधी के समय में तो पूरा देश फॉलो कर रहा था उनको, तो उनके बाप दादे भी फॉलो कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे आदमी कर क्या रहा है। 5 बार साउथ अफ्रीका में उनको इतनी मार पड़ी थी कि वो मर जाते, और 5 बार उन्होंने मारने वालों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करी। हमें मार पड़ेगी, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अपने रिएक्शन मालूम ही, पहले तो हम लोग खुद ही लड़ने लगेंगे, अपनी पूरी ताकत से नोचो वोचो, ज्यादा हो तो गोली मार दो, कुछ भी कर दो। एक बार एक आदमी था मीर आलम, उसने गांधी को मारा और गांधी बेहोश हो। जब होश में आया तो उन्होंने पूछा मीर आलम है क्या? वो अरेस्ट हो गया, तो बुलाओ, छुड़वा दो। मीर आलम ने माफी मांगी उनसे। सो देन ही सेड मेरी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि तुम मुझे मार रहे थे और मैं मर जाता, मेरी प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त मुझे तुमसे नफरत नहीं होनी चाहिए जिस समय मुझे मार पड़ रही है। और एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं? यही होता है एक्सपेरिमेंट, रिपीटेडली। और गुस्सा भी गांधी में बहुत भरा था एज ए यंग पर्सन, बट ही कुड चैनलाइज दैट, चैनलाइज। ये उनका फैसला था, आप जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही फैसला करें, लेकिन मेरा कहना है कि आप जो भी फैसला करें, आपको हिंसा करनी है अगर सपोज, तो फिर हिंसा कर लीजिए, फैसला करके करिए। फैसला करके हिंसा कर सकते हो। कभी ठंडे दिमाग से बिना गुस्से के गाली दे के देखो, बिना इमोशनल हुए दे सकते हो, मार सकते हो किसी को बिना गुस्सा हुए, हाँ कि ना? अरे अपने घरों में जब रिएक्ट करते हो मम्मी पापा को अपने, तुम लोग करते हो ना रिएक्ट, तुम्हारे मन की नहीं हुई कमरे में घुसे, धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया, नहीं आएंगे खाने, ये नहीं करेंगे, मोबाइल छीन लिया, ये सब झंझट जो चल रहे हैं लाइफ में फालतू के। अगर तुम लोग इमोशनल ना हो उस वक्त, सपोज गुस्सा मत करो। अगर तुम्हारी मम्मी ने कहा खाना अच्छा नहीं बना है और तुम्हें उठ के कमरे में जाना है, बहस हो गई तुम्हारी डाइनिंग टेबल पे और तुम्हें उठ के जाना है, होता है ना ऐसा? किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा? सबने किया होगा। और गुस्सा नहीं करना है, तब क्या करोगे? तब रिएक्शन क्या होगा? क्या लड़कियों बताओ, तुम लोगों को तो बहुत टोका टाकी होती है घरों में, लड़कों से ज्यादा। अभी तो नारियां आजाद नहीं हो रही भारत में। हाँ, नारियों को तो गांधी जी ने आजाद किया था, उसके पहले तो स्लेवरी चल रही थी, उनको ले आया वो मूवमेंट में बाय वन सेंटेंस।
जिसमें तुम भी उतनी ह्यूमन हो जितना पुरुष है। ये 5000 साल की कहानी क्या है भाई, वो श्रेष्ठ है या नहीं श्रेष्ठ है। तो आज भी हिंदुस्तान बदला नहीं है, क्योंकि आज भी एक पॉइंट आता है जब लड़कों की टोका टाकी कम हो जाती है और लड़कियों की बढ़ जाती है। इसका नतीजा होता है ये सब कलकत्ता और निर्भया कांड, क्योंकि लड़कियां जब बढ़ रही होती हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में इतनी टेम्परिंग होती है कि व्हेन दे कम टू लाइफ और कोई भी असॉल्ट होता है किसी भी तरह का या कोई एडवर्सरी होता है तो उनका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में नहीं चलता है, फ्रीज हो जाता है। फ्रीज में आपका एडवर्सरी आपको ओवर पावर कर देगा। ऑल दिस थिंग्स दिस ओल्ड मैन हैड वर्कड आउट। पर वो कह रहे थे हिंसा और अहिंसा की चॉइस है आपको। उस समय तक अहिंसा की जो इस देश में बात होती थी, महाभारत में हो चाहे वेद में हो चाहे किसी भी फिलोसफिकल सिस्टम में हो, इट वाज ऑलवेज अ रिएक्शन टू हिंसा। ठीक है, हिंसा करी, हिंसा का रिएक्शन है अहिंसा। और लोग अहिंसा के जो जितने श्लोक शुरू में पढ़ो तो वो इसलिए थे कि आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है यज्ञ में, मांग अपने लिए अहिंसा रहा है। सेक्रीफाइस से हिंसा अहिंसा मांग रहा है ऊपर से कि हम ये तुम्हें बलि चला रहे हैं, हमें प्रोटेक्टेड रखना, हमारे साथ हिंसा ना हो जाए। क्या डील है? मेंटल इलनेस थी क्या? ये प्रॉब्लम थी। पहली बार गांधी के साथ ऐसा हुआ कि अहिंसा बिकेम अ प्रोएक्टिव डिसीजन एंड अ प्रोसेस। दैट इज व्हाई यू कुड ट्रेन योर माइंड इन अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं था कि आप गलत चीज को प्रोटेस्ट ना करें, आप गलत चीज को प्रोटेस्ट करिए। सत्याग्रह इसीलिए बना था, लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रिक गांधी ने खेली थी अपने साथ कि आपने मुझसे देखिए, अब आप सोचिएगा आपकी मम्मी की बात पे या किसी टीचर की बात पे या बाहर आपसे कोई गाली दे दे, कुछ कर दे, तो आपको गुस्सा क्यों आता है? आपका ईगो हर्ट हो जाता है ना? ईगो क्या हर्ट हो जाता है आपको? एक्चुअली ईगो कुछ नहीं हर्ट होता, आपको फियर हो जाता है। एक्चुअली बेसिक इमोशन फियर है, वो आपका फियर जगा देता है। फियर इसलिए जगा देता है कि मेरी अपनी इमेज थी, इस पे देखो पत्थर मार दिया इसने, तो अब मुझे जवाब देना है अपनी ईगो को वापस समेटने के लिए। तो आप सब झंझट करते हो उसके पीछे। मैंने कहा ना गांधी जी के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी। गांधी जी कहते थे कि जो बात है, जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे जो करना करो, प्रोटेस्ट करो, लेकिन अपने अंदर पका क्यों रहे हो? उस व्यक्ति से नफरत करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका दुश्मन भी हो तो वो भी इंसान है, तो अगर वो गड़बड़ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उसी गलती की सजा हम उसको देंगे और खुद को नहीं देंगे। आज की भाषा में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर एक ग्लास हाथ से छूट जाए, अगर आपके हाथ से छूटता आप कहते हैं मिस्टेक, और आपकी मेड छोड़े तो आप क्या कहते हैं? देख नहीं रही हो, समझ नहीं सकती है। होता है ना? ये दूसरा करता है तो जानबूझ के कर रहा है, आपकी मिस्टेक। ये हिंसा की जड़ है, ये जड़ है, गैप। सो द गैप बिटवीन यू एंड मी इज द सोर्स ऑफ वायलेंस। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचिए तो आप भी गलती कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो उसकी सजा अगर हम अपने को दें तो ठीक है, तो अपने को नहीं दे रहे तो उसको भी मत दो। लेकिन बात है जो इनजस्टिस है, दूसरे का व्यवहार, उसको प्रोटेस्ट करो। इसका सिंपल सा मतलब ये कि जो बात आपसे कही गई, आपको 2 गाली पड़ भी गई, तो आप अंदर जो गाली से हमें इमोशन चल रहे होते हैं उसको हैंडल नहीं करते, हमें उससे ध्यान हटाना चाहिए। अभी आप ही स्किट में कहा गया है ध्यान हटाओ, 100 तक गिनो। हम 100 तक गिनते नहीं है, हम उस बात में इतना लिप्त हो जाते हैं कि ब्रेन में वो घुमड़ होने लगता है। जब उसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशन, तो हमें लगता है इसको कहाँ दिखाना है, तो बाहर वाले से नफरत कर लो। आपने ऐसा क्यों कर दिया? अरे वो उसने भी कह दिया, उसको भी पता लग गया उसने गलत कहा है। लेकिन आप एक इतने से मुद्दे को इतना बना लिया। ये हिंसा की जड़ है पहली। दूसरी, जो आपकी कंडीशनिंग ब्रेन की होती है, डिग्निटी ऑफ लेबर भी आपने अभी कहा था ना, कोई काम छोटा नहीं होता। हमारे देश की प्रॉब्लम मैम यही है कि डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं सिखाया गया।
अमेरिका में मेरी मेड मुझसे बड़ी गाड़ी से यूएस ऑस्ट्रेलिया में आती थी, मेरे पास आती थी, काम वाम करती थी, फिर नहाती धोती थी मेरे घर में, फिर कॉफ़ी पीती थी, चली जाती थी। तो आप डॉक्टर होंगे, वो हेल्पर है, क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे यहाँ बड़ा छोटा ये बनोगे। अभी आप आज अपने माँ बाप से कहिएगा कि आपको कोई कह जाएगा हलवाई बनना है, तो तुम हलवाई छोड़ो, तुम लड़कियां अपने माँ बाप से कहते हो मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो एक्ट्रेस तो करीना कपूर है ना, अमीर, उसमें भी झंझट हो जाएगा, है ना? तुम कहते हैं यार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दुकान खोल के बैठना है, क्या क्या देखो करना, आज एक्सपेरिमेंट करना, मैं नंबर छोड़ दूंगा अपना, बताना मुझे व्हाट्सएप पर रिएक्शंस क्या हुए। तो उनसे पूछो भाई प्रधानमंत्री के काम में और मिठाई बेचने में क्या फर्क? अरे बनारसी के लड्डू बहुत बिकते हैं, प्रधानमंत्री के पहले भी बिक रहे थे, उनके बाद भी बिकते रहेंगे, है कि नहीं? बुराई क्या है? इसका मतलब यह है कि जब मोदी जी ने सत्ता ली थी 2014 में, 27 मई को उन्होंने जो भाषण दिया था वो गांधीयन भाषण था, वो देश भूल गया एक्चुअली। गांधी जी कहते थे डिग्निटी ऑफ लेबर में ये हर व्यक्ति के अंदर एक स्किल सेट है, वो स्किल सेट डेवलप करो। इसीलिए कहते थे गांव के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं अपने पिता का काम तो सीख लो, पीएचडी भी कर लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं। स्किल सेट, कौशल विकास है स्किल सेट, अपनी स्किल से कमाओ, मेहनत से कमाओ। द लाइफ ऑफ लेबर इज द ओनली ट्रू लाइफ। लेकिन हमारे चक्कर क्या है, कौशल विकास चलता क्यों नहीं है? मैंने मिनिस्टर से कहा तुम लोग ऊपर से क्यों चिल्ला रहे हो कौशल विकास? भारत के माँ बाप अपनी खाल उतार के बीटेक कराते हैं लोग, है ना? वो उनसे कोई इलेक्ट्रीशियन बना दो अपने बेटे को, ये अच्छा काम जानता है, हाँ? तो कहेंगे नहीं हम अपने को बेचेंगे, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाएंगे, फिर वो इलेक्ट्रीशियन बने। बीटेक इलेक्ट्रीशियन आपको थोड़े दिन में सड़कों पर दिखने लगेंगे, दिख ही रहे हैं ऑलरेडी। एमबीए मोबाइल बेच रहे हैं, ये सपने दिखा रहे हैं लोगों को। सही है, कौशल विकास ये चल रहा है, नीचे से बदलो। दिस इज यू नो हाउ गांधी यूज्ड टू रिड्यूस वायलेंस। ऊपर से गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, कहती है जाओ बीच में आईएएस अपना पैसा से बना लेते हैं, वो स्कीम पहुंचती नहीं, ना नीचे चेंज हो रहा है ना ऊपर। प्राइमरी स्कूल देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। गांधी कहते थे ये सब प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं है, गो बैक टू द रूट, लोगों के साथ जाओ, उनकी प्रॉब्लम समझो, उनकी नीड समझो, फिर सॉल्यूशन निकालो। तो दिमाग में एक चीज रखना कि जो करो जिंदगी में वो लास्ट मैन तक पहुंचे, उसका फायदा। दिस वे इज वेज टू रिड्यूस वायलेंस। आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि आप जिस दुनिया में कदम रखोगे वहां रिसोर्सेस कम है, पावर पॉलिटिक्स चल रही है, राइट? हिंसा बहुत बढ़ गई है। जब तक आप अपने इर्द गिर्द हिंसा कम करना शुरू नहीं करोगे, ये ईंट है एक पूरी बिल्डिंग में, तो आप अपनी ईंट सीधी रखो बस। हर आदमी अपनी ईंट सीधी रखेगा ना तो बिल्डिंग का शेप बदल जाएगा। इसलिए भी जरूरी कि आने वाले वक्त में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी आपकी जिंदगी में थोड़ी घुसी हुई है, इससे वो पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी होगी। सोचने समझने की शक्ति अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के हाथ में होगी और गैप्स बहुत होंगे, क्योंकि नौकरियां तो छूट जाएंगी एआई की वजह से, कम हो जाएंगे ना, एक मशीन काम कर देगी। लेकिन जो लोग खाली होंगे, हु विल इंश्योर कि उनको ब्रेड एंड बटर और सिक्योरिटी और छत सब मिलेगी? कौन इंश्योर करेगा? आप अमेरिका से उम्मीद कर रहे हैं, अगर 100 लोगों का जॉब छूट जाता है, अभी भी छूट जाता है, तो उन 100 लोगों को क्या गारंटी मिलती है कि अब आपको घर भी मिल जाएगा और इतना पैसा मिल जाएगा? है कोई गारंटी? तो हमारा देश तो और बुरा हाल है, तुम लोगों को तो चैन से जीने नहीं दे रहे लोग। 11वीं 12वीं में पहुंच गए हो ना, कितनी मुसीबत है। हर गधा पूछ रहा है तुमसे, सड़क चलता है, क्या करोगे जीवन में? क्या बनना है? क्या बंदर बनना है? क्या बनना है? कैसे बताओगे? तुम्हारी लाइफ में मतलब मुझे मालूम है तुम लोगों के जीवन में कोई खुशी नहीं है,
खुशी नहीं तुम लोगों के जीवन में, क्योंकि सारी खुशी तो भविष्य ने मार रखी जान। अरे करना क्या, रात दिन पता नहीं क्या करना है, तो कहाँ से ज्ञान प्राप्त करोगे, क्या करोगे लाइफ में? जबकि जीवन वही है। फिर स्किल सेट की बात आ गई कि आप वो ढूंढिए जिसके लिए आप बने। कृष्ण ने भी कहा स्वधर्मम निधनम श्रेयम पराधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर भी जाओ, स्वधर्म ढूंढने का समय नहीं है आपके पास, क्योंकि सोचने समझने की बुद्धि डेवलप होती है 18, 19, 20 साल में, है ना। और हम लोग 16 साल से बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि अभी बताओ क्या करना है। अरे 15 साल उसको सोचने नहीं दे रहे हो कि मोजा लाल पहनना है कि नीला, मैगी खानी कि पराठा खाना है कि जूता कैसे पहनना है। अब अचानक उससे कह दो सोचो करियर कैसे बनाना है। फिर भारत सरकार चली आती है कि 18 में वोट दो, फिर तुम लोग वोट दे दे के क्या इलेक्ट करते हो तुम लोग को भी मालूम है, दिख रहा है सब क्या चल रहा है। ये जानते हो क्या है? ये सब हिंसा है। पहली हिंसा तो अब अपने साथ करना। यूएस में कोई 18 इयर्स के बाद एकदम से एडमिशन नहीं देता, मालूम है आपको, मेडिकल इंजीनियरिंग कहते जाके पढ़ के आओ पहले। डॉक्टर तो बनने नहीं देते, 2 साल आर्ट्स पढ़ो, ह्यूमैनिटीज पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, गेट अ वर्ल्ड व्यू, देन कम। हमारे यहाँ बस चले तो मेरे ख्याल से तो 2-2.5 साल में एडमिशन हो जाता है आजकल स्कूलों में। बताओ 2.5 साल के बच्चे को चड्डी पहनने की तमीज नहीं है, आप उसको स्कूल भेज रहे हो। 16 में आप उससे कह रहे हो इंजीनियरिंग के बारे में सोचो। इंजीनियरिंग जितने बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हो उनसे पूछिए इंजीनियरिंग होती क्या, किसी को नहीं पता होगा। बट दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। You know what will happen? You will be facing huge violence in your daily life. Being unhappy is the biggest violence. And unhappiness arises from gaps which you are creating in your own head. गांधी बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन काम। और ये लोग सोचते हैं गांधी पॉलिटिशियन था, ये सब भूल जाइए पॉलिटिशियन वगैरह। वो तो कर रहा था पॉलिटिक्स क्योंकि he was alive in that time. गांधी was a life. He was a thought, he was a process. वो प्रोसेस बिल्कुल सही थी आदमी को उसके बेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचाने के लिए। जीवन का मकसद क्या है? बेस्ट पोटेंशियल, ऑटोनॉमी ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट, डिसीजन मेकिंग। फिर आप जो करिए वो ठीक, फिर ठीक। हिटलर की चॉइस थी। आप ये भी प्रकृति का गेम देखिए, एक ही समय पे हिटलर का एक्सपेरिमेंट चल रहा था और एक ही समय पे गांधी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो अभी भी वायलेंस चल रही है सब जगह, और कॉर्पोरेट वायलेंस और बिजनेस वायलेंस, और ये तो स्ट्रक्चरल वायलेंस कहता हूं मैं इसका, आपके सिस्टम में घुस गई सड़कों पे। ये सब आपकी जनरेशन को बदलना पड़ेगा। हम लोगों से उम्मीद मत रखिए, हम सब हो गया खत्म सबकी कहानी। 99% एडल्ट सिर्फ अपना गाड़ी, घर, विदेश यात्रा, बच्चों की शादी, इसी में फंसे हुए हैं, वो कुछ ना कर पाएंगे, सब स्वार्थ। पहले तो आप अपना सेल्फ बनाइए। जब आप सेल्फ बनाएंगे तब आप सेल्फलेस होंगे। तो सेल्फ में रहना और दूसरों के लिए जीना, ये जो फाइन बैलेंस था, गांधी वाज अ मास्टर ऑफ दैट, बिकॉज ही हैड मास्टर्ड एन आर्ट कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स आई कैन पुट माई सेल्फ इन योर शूज, राइट? I can feel like you, but you can't shake me. ये प्रैक्टिस है। तो समझ में आ रहा है कि ज्यादा हो गया, कि वही कचरा करना जो जीवन चल रहा है, हम लोगों ने जो दिया तुम लोगों को। पहली बात तो ये सीखो, सत्य पे आओ। पहले अपना सत्य ढूंढो, जीवन में करना क्या है, ठीक? उस सत्य को तुम लोग अपनी बात कहते हो घरों में, लेकिन क्रोध में कहते हो, तो माँ बाप भी नहीं सुनते। क्रोध सामने आ जाता है, बात पीछे रह जाती है ना? गुस्सा नहीं करते, किसी से पूछो गुस्सा क्यों हो रहे हो, तो आधे लोग बता ही नहीं पाएंगे तुम्हें क्यों हो रहा है। ये नफरत चल रही है कि हम बड़े तुम छोटे, हम ये तुम वो। कहा हिंदुस्तान में तो कमाल के लोग हैं, हम लोग कास्टिस्ट लोग हैं। हमें बस गैप दिखा दो, बस फिर हम पूरा सर डाल देते हैं उसमें। कोई भी गैप दिखा दो कि उसका घर में शीशे यार ज्यादा अच्छे लगे, हमें तो अपना काम करो, अपने घर के शीशों से देखो। नहीं, उसके लिए पैसे खर्च करके बनवाएगा वो। वैसे गाड़ी सड़कों में देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी होती चली जा रही हैं,
करना क्या है तुम्हें इसका, लेकिन है। अब चलो हिंदुस्तान ने 30 जनवरी 1948 को शाम को 5:17 पे एक रास्ता चूज किया जो कि गांधी का रास्ता नहीं था। पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि गांधी विल प्रोवाइड अ न्यू वे ऑफ लिविंग, बट गोडसे साहब ने एक बार गोली मार दी, उसके बाद से रोज कांग्रेस गोली मारती रही, और अब तो हर ऐरा गहरा नथु गहरा गोली मार रहा है। अब तो कैसे कैसे लोग गांधी के बारे में बोलते हैं, है ना, ये स्पष्ट अपनी बात भी नहीं कह सकते। देखिए अखबार में, टीवी पर, बट एनीवे उन सब चीज़ों से गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी दुनिया भी घुटनों पे आके ढूंढेगी किसी दिन उनको, तो अगर उनकी इच्छा होगी तो मिल जाएंगे। आप ही लोगों ने कहा वापस लौट आओ, तो आप अच्छे बच्चे हो, कम से कम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आप लोग, प्लीज ये बच्चों को बीच में दिखा देना कि तुमने क्या कहा था। कोई बच्चा टेढ़ा हो उसको ये दिखा देना, देखो तुम क्या क्या कह रहे थे। बट एनीवे, सो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि गांधी जी से पॉलिटिक्स और ये सब छोड़ो, सीखने वाली बात ये कि कैसे आप अपने दिमाग के साथ डे टू डे में एक्सपेरिमेंटेशन करके यू कैन बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू कैन बी अ ह्यूमन बीइंग जो अपने पोटेंशियल पे जी रहा है। और वो ह्यूमन बीइंग, मैं 2 शब्द बता के खत्म करता हूँ बात। एक होता है एक्चुअलिटी, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, मतलब आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, जो बुद्ध कह रहे थे कि सेल्फ एक्चुअलाइज करो, अपने पोटेंशियल पर पहुंचो। ये तो सब सिखा देते हैं, ये तो अध्यात्म बहुत सिखाता है, लेकिन अध्यात्म सेल्फिश भी होता है कि दुनिया की चिंता मत करो, हमें मोक्ष पाना, तो तुम मोक्ष पा लो, बाकियों का क्या होगा, बाकी सब मंदिर में पूजा करेंगे। तो गांधी ने दूसरा शब्द डाल दिया, म्यूचुअलिटी। मेरा एंटीला बना हुआ है बम्बई में अंबानी साहब का। अंबानी साहब, मैं जब भी बम्बई जाता हूँ, मेरे कुछ मित्र भी रहते हैं वहाँ पे, श्याम बनेगल लिव्स जस्ट नेक्स्ट डोर, तो मैं उनसे मिले जाता हूँ। मैं अंबानी साहब के घर के पीछे से एक चक्कर जरूर काटता हूँ सुबह, मुझे बड़ा रस आता है उसमें। रस क्या, उनकी बाउंड्री जहाँ खत्म होती है पान की टपरी है, और सामने उनके वो सब्जी और फल और अंडे बेचने वाले की दुकान लगती है, बिल्कुल। ये अंडे की दुकान है, ये इनका घर। ये गैप जो है ना, यही हिंसा है, यही हिंसा है। और ये हिंसा होगी, आपके पास होगा, पड़ोसी के पास नहीं होगा, और आप रोज पार्टी कर रहे होगे, तो किसी दिन तो छीन ही लेंगे, फिर आपसे छीन लेंगे आपसे। जब तक आप हिंसा कर रहे हो तब तक बड़ी अच्छी, जब आपके साथ होगी तो फिर आप चिल्लाओगे। वो ना हो इसके लिए जरूरी तुम लोगों का, तो देयर इज अदर वर्ड इज कॉल्ड म्यूचुअलिटी, कि जब आप दुनिया में उठे तो आसपास की दुनिया को भी उठाएं जरा साथ, तो शेयरिंग रहेगी। जहाँ पे शेयरिंग होती है ना, कंटिन्यूटी, वहाँ हिंसा कम होती है। तो शेयरिंग के लिए आपको सेल्फ में रहना पड़ेगा, थोड़ा छोड़ना भी पड़ेगा। ये छोड़ना सिखाना हम लोगों ने बच्चों को बंद कर दिया है ना। सेल्फिश, 9वीं में पहुंच गए और 4 साल कुछ भी हो जाए, सेलेक्ट हो जाओ, कोटा चले जाओ, वहाँ से दादी भी यहाँ मर जाएगी तुम्हें बताएंगे नहीं हम, अम्मा भी घर छोड़ के चली जाएगी कोटा। सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, फिर सेल्फ सेंटर्ड पैकेज और MBA और ये, और क्या करेंगे ये लोग, ये कहाँ निकल के कर सकते हैं। फिर कहते हैं CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब नॉनसेंस जो चल रही है, ये हमारी नहीं है, हमारे देश की नहीं है, ये US की है। हम बिना वजह उसमें फंस रहे हैं। हमारी ज़िंदगी अभी भी है कि बेस्ट करो, अपनी लाइफ शेयर करते रहो, पैसे से ही नहीं, मदद से और तरीकों से। तो आप लोग, आप में से किसके किसके घर मेड आती है? सभी के घर आती है, सब अमीर लोग हैं। वेरी गुड। अमेरिका जाना, टॉयलेट खुद साफ करनी पड़ेगी, सब घोष ठिकाने आ जाएंगे सबके। कितने लोग अपनी मेड के घर गए? 1 2 3 4 5। कितने लोग अपनी मेड के बच्चों के पढ़ाई के बारे में चिंतित रहते हैं, किताबें देते हैं, पढ़ाते हैं बुला के? अच्छी शिक्षा है आपकी, गनीमत है, इतने बच्चे तो हैं। ये गैप रिड्यूस करने के तरीके हैं, ये गैप रिड्यूस करने के तरीके सिंपल। अब आप ये मत कहिएगा आपको गांधी नहीं पता,
आप लोग गांधी कर ही रहे हो, गांधी तो कर ही रहा था ये सब, तो उसको क्या प्रॉब्लम था? उन्होंने तो अपने कपड़े उतार दिए थे कि हम सबको दे नहीं सकते, लो हम भी ऐसे घूमते हैं, आओ चलो क्या करना है। गांधी बनना कठिन काम नहीं, बस सिर्फ एक चीज होश में रखनी पड़ती है कि जो चीज आप डिसाइड, पहले तो जल्दबाजी में डिसाइड मत करो तो 24/7 प्रैक्टिस करो, ठीक। उस रास्ते में इफ यू फॉल, फेल, गेट हर्ट, डोंट वरी, गेट अप, झाड़ो फिर चलो। ये सीख लो, जिस दिन सब कष्ट दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो सारा दिन गांधी की बात कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट डू दैट। तुम लोग प्रैक्टिस करो, मेरा नंबर नोट कर लो, कोई बच्चा नोट कर ले, पास कर देना सबको। अभी बताता हूँ क्यों दे रहा हूँ। 9839027402। फोन मिलाना नहीं, व्हाट्सएप करना। मैं चाहता हूं आप लोग एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है। एक दिन, सिर्फ एक दिन ऐसे जी के देखो कि उस दिन किसी को मन में गाली मत दो, ईर्ष्या मत करो, बिना वजह चिढ़ो मत किसी, और बिना वजह कि अपने को ये नीचा मैं ऊपर, मतलब ये सब नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, जो मनुष्य के बीच में गैप पैदा करती हैं, दिमाग में आए भी तो अवॉइड कर लो, ठीक है। एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर मुझे बताना आसान है कि कठिन। आसान होगा कठिन होगा? कठिन कि आसान? करके देखो। वो सोचो वो आदमी 70 साल कर रहा था, बस इसीलिए गांधी गांधी है और हम हैं। तो आप अपने आप गांधी मत बनिए, आप जैसे अपने ही को बढ़ा लो। प्रोसेस वही है गांधी वाली, प्रोसेस वही है। तो चूज वॉट एवर यू वांट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। तो सवाल वाला नहीं पूछना है कोई सवाल या मतभेद है कोई सवाल? पूछो मुझे। अब पूछने दो भाई, तुम लोग देखो, अभी मैंने कहा गैप छोड़ो, वो खड़ा हुआ, तुम लोग हंसने लगे। हाँ बताओ बेटा। इधर आ जाओ, और निकल जाओ जल्दी से, आ जाओ इधर से। नहीं ठीक है, सवाल सही, तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, श्री राम की कहानी इससे पूछो। मैं क्या है? अरे हमसे पूछो। अच्छा बताओ, हम बोल देंगे। नहीं, ये ईद का सवाल है, बड़ा अच्छा है, या बड़ा पॉलिटिकल सवाल है। आजकल के बच्चों को ये होना ही चाहिए, क्योंकि यही नैरेटिव चल रहा है कंट्री में। इनका सवाल है कि हम लोग को श्री राम और गांधी और ये सब पढ़ाए जाते हैं, हमें सुखदेव और नेपोलियन और ये सब नहीं पढ़ाए जाते। नहीं, ऐसा बेटा सुनो, पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाए हम ये भी जाते हैं, लेकिन हम पहली बात तो नेपोलियन हिंदुस्तान के हैं नहीं। रुक जाओ, शहीद सुखदेव बता रहा हूँ। शहीद सुखदेव हुए हैं भगत सिंह के समय में। कब की बात है? आज़ादी के समय की। राम कब हुए? जब भी हुए हैं। त्रेता युग कब था तुम्हें पता नहीं ना, कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है उसका। एपिक्स जो लिखे जाते हैं और माइथोलॉजी जो होती है, वो कॉमन फोक मेरे के दिमाग में चली जाती है। समझो बात, कॉमन फोक के दिमाग में चली जाती है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से। और जो राम की बात होती है, वो वाल्मीकि रामायण से अगर किसी से पूछ लो ना, तो तुम्हें 5 आदमी नहीं मिलेगा बताने वाला। तुम्हें रामचरित मानस वाले मिलेंगे, जो तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में लिखी। तो वो एक पोएट्री एपिक के रूप में लोगों के दिमाग में आ गई। सारे देश की, ग्रीस की माइथोलॉजी हो, ये माइथोलॉजी जो है, माइथोलॉजी प्लस तो हिस्ट्री हो सकता है छोटी रही हो, उसकी कथा बड़ी लिखी गई। तो मनुष्य का दिमाग कथाओं में चलता है। बात समझिए, हम सब कथाओं में जी रहे हैं। ब्रेन की
बालाजी ऐसी क्यों कथा बनाता है, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपकी दादी सुनाती थी, पता नहीं आप लोग की दादी सुनाती कि नहीं, वो गैर पढ़ी लिखी होती थी, ठीक है, तो वो उसको जो उन्होंने सीखा वही तो सिखाएंगे वो। प्लस जब एजुकेशन आया तब तरह तरह की चीज़ें आ गई, मार्क्सिस्ट आ गए, ये आ गया कार्ल मार्क्स, तो सब पढ़ाया जाता है। जब तुम जाओगे ना कॉलेज में, तुम सही कोर्स लोगे तो सब पढ़ोगे, नेपोलियन पढ़ोगे, भगत सिंह पढ़ोगे। अब सुखदेव और भगत सिंह ये सब एक समय पे थे। भगत सिंह के बारे में तो जानते हैं ना सर, ठीक है, तो आपको ज्ञान प्राप्त, ज्ञान सब अवेलेबल है, किताबों में भी है, वो कहानी के रूप में आपके घरों में डिस्कस। हमारे घर में मेरी वाइफ जहाँ से आती है वहाँ भगत सिंह की फैमिली रहती थी हम लोगों के साथ आके। दुर्गा भाभी जिन्होंने भगत सिंह को निकाला था, उन्होंने लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल चालू किया, वो बचपन में हम लोग मिले उनसे। आपको अच्छा कानपुर में, कानपुर के हिसाब से मत चलो, यहाँ तो बहुत ही हम लोग क्या अपना क्या है, कानपुर और भगत सिंह का क्या लेना देना बताओ। हाँ, अरे वो भगत सिंह से क्या ताल्लुक उसका, वो अलग था। गंगा मेला जो छूट के आए थे वो लोग पूछते, भगत सिंह का क्या ताल्लुक है कानपुर से, या अपने पेरेंट्स से पूछना। अब देखो, ये तो ज्ञान 100 साल का है, ये तो किताबों में भी लिखा है ना, कि ज्ञान आपको लेना है कि नहीं लेना, वो तो चॉइस हो गई ना फिर आपकी, कोई मना थोड़ा ना कर रहा आपको। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान में कार्ल मार्क्स पढ़ा होगा ना, तभी तो कम्युनिस्ट बने। आपका क्या ज्ञान आपको प्राप्त करना है वो आपका डिसीजन है। कोई इसमें ये जो नया हिंदुस्तान में 10-20 साल में नैरेटिव आया कि दिस वर्सेस दिस, गांधी की बात कर रहे हो, बोस की बात नहीं कर। मैंने कहा बापू किसने कहा था? आपको बोस और गांधी का रिश्ता पता है कि कितना प्यार एक दूसरे से करते थे? नहीं पता आपको। पटेल और गांधी कितना करते थे? नहीं पता। हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया की तरह क्या हो गया, डिफरेंसेस में हम लोग बहुत ध्यान देने लगे। हम जो आपस का कनेक्शन इन बड़े लोगों का था उसकी बात नहीं करते। अब नेचुरली ये बात समझो, राम, कृष्ण, गांधी, बुद्ध, ये बाकी सब लोगों से बहुत बड़े थे, इनका काम का इम्पैक्ट बहुत था। बोनापार्ट युद्ध लड़ रहा था, वहीं तो लड़ रहा था ना, फ्रांस इजिप्ट में। बुद्ध तो कहां तक फैले हुए हैं। गांधी के ऊपर कितनी पीएचडी हो चुकी मालूम है? किसी ने रोका? कर लो बोनापार्ट। अल्टीमेटली पीपल विल डू व्हाट टीचर्स देम टू बी अ ह्यूमन बीइंग। इसलिए ये बातें ज्यादा होती क्योंकि ये हमारे आपके दिमाग और दिल और उसके ज्यादा करीब है। भगत सिंह जो थे, बड़ी डिबेट चलती है, कानपुर का कनेक्शन ढूंढ के बताओगे मुझे? शिव वर्मा का नाम सुना है? नहीं सुना। जयदेव कपूर का नाम नहीं सुना। स्वराज पब्लिक इंडिया का नाम सुना है? स्वराज पब्लिक का नाम सुना है? स्कूल का जाके ढूंढो, उनकी फैमिली का क्या, आजाद उनके घर में रुकते थे आके। मुझे कहां से पता चला? मुझे कहां से पता है? ये गांधी मुझे इतना पढ़ाया था ना गया है, तो मैंने पढ़ा जाके बाद में, राइट? व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट यू आर आस्किंग इज वेरी राइट। जो स्टोरीज तुम लोगों को बताई जाती हैं उसमें किताब भी हैं, टीचर्स भी हैं, घर भी है। उसके बाद आपका जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो आप एक्सप्लोर करिए। सब नॉलेज पड़ी हुई है। जो पढ़ा रहे हैं, जो घरों में, अब तो कोई कहानी नहीं सुनाता, लेकिन वो जो सुनाते थे उन्होंने बेचारों ने यही कहानियां सुनी थी। सत्यनारायण की कथा है, पता नहीं सत्य है कि नहीं, लेकिन करवाते ना घर में लोग, आपको पता नहीं ना, तब आप क्वेश्चन। सो व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी राइट। लेकिन अगर यही एटीट्यूड रखोगे तो लाइफ में बड़े बन जाओगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। क्वेश्चन, डोंट एक्सेप्ट इजी आंसर्स, ठीक है? और अगर कोई एक दिस वर्सेस दिस बता रहा हो ना, तो जरूर चेक कर लेना नियत क्या है उसके पीछे। कोई वर्सेस दिस और वर्सेस नहीं है। सुखदेव साहब की कहानी जब आएगी भगत सिंह के साथ आएगी, है ना? उनकी अपनी एक जिंदगी थी, आप उनको पढ़े हैं काकोरी कांड में, बिस्मिल की अपनी जिंदगी थी, बट दुनिया बातें वो करती है जिसका जितना लंबा इम्पैक्ट होता है।
जब बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है तो रिलीजन शुरू हो जाता है। क्राइस्ट से रिलीजन शुरू हो गया, प्रॉफिट से रिलीजन शुरू हो गया, राइट? इम्पैक्ट खेल है, इम्पैक्ट मोदी जी का इम्पैक्ट खेल है, इतना बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन वो पॉलिटिकल है, वो कभी ऊपर नीचे हो सकता है। आइंस्टाइन का तो तुम मुझे मैं तुम्हें इतने बड़ा भाषण आइंस्टाइन पे भी दे सकता हूँ अभी यहीं खड़े खड़े, और इतने बड़ा मैं सत्यजीत रे पे भी दे सकता हूँ, और इतने मैं हिटलर पे भी दे सकता हूँ, और इतने मैं क्वांटम फिजिक्स पे भी दे सकता हूँ, श्याम बनेगर पे भी दे सकता हूँ। ये सब पढ़ा क्या है? पढ़ो पढ़ो, पढ़ते नहीं हो ना तुम लोग का प्रॉब्लम ये है, तुम लोग को व्हाट्सएप में जो बता देता है बस पढ़ो। कोई भी सवाल आपको बताया जाए, चीज बताई जाए, प्लीज गो टू द ओरिजिनल सोर्स एंड ट्रेस इट, तब आपको अचरज की बातें पता चलेंगी, अचरज, आंखें पड़ जाएंगी तुम्हारी, और तब आपको लगेगा कि जो आपको बड़े बता रहे हो कितना झूठ है। बस एक उदाहरण मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। लोग कहते हैं ना कि गांधी ने भगत सिंह और ये गांधी के कन्फ्लिक्ट बहुत बताते हैं। ये जानते हो कहाँ से आ रही है? एक पिक्चर आई थी लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें गांधी इरविन पैक्ट पे साइन हो रहा था, ठीक उसके बाद भगत सिंह को फांसी थी। राइटर मेरे दोस्त है, उनको मैंने फिल्म देखते हुए फोन किया कि तुमने ये इररिपेरेबल डैमेज कर दिया। अब हर आदमी सोचता है गांधी जी बचा लेते, कर लेते, किसी को हिस्ट्री पता नहीं है। गांधी जी ने कम से कम 100 लेटर लिखे थे भगत सिंह को बचाने के लिए। गांधी इरविन पैक्ट के एक दिन पहले एक लेटर लिखा। गांधी जी ये नहीं कह रहे थे कि आप इनको, वो कह रहे थे मारो मत, आप तो देश छोड़ोगे, आप छोड़ो, हम देख लेंगे, हमारा बच्चा है। तो भगत सिंह को फांसी किस लिए हुई थी? किस लिए हुई थी? सॉन्डर्स की हत्या में, सॉन्डर्स की हत्या के लिए कैपिटल पनिशमेंट। इरविन ने एक पेज में लिख के भेजा कि आई विल नॉट take any decision because I do not want bureaucracy to interfere in judiciary। आप लोग कहते हैं ना जजेस बेईमान हैं और सरकार अफेक्ट कर रही है, क्या कह रहा था वो आदमी? पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट इंटरफेयर इन जुडिशरी, ये रूल है, कानून है, मना कर दिया। चलो ये भी बात हो गई। और दूसरी बात अब ये बताइए क्या मूर्खता है, भगत सिंह ने खुद को पकड़वाया था, वो अपना मैसेज दुनिया में कहना चाहते थे, राइट? वो आदमी तैयार था मौत के लिए, तैयार था। वो दया की भीख मांग के मरता है कि छुड़वा दिया गांधी जी ने। और भगत सिंह को आप क्या जानते हो उनके बारे में? कौन जानता है? भगत सिंह ने 90 दिन की भूख हड़ताल करी थी जेल में। दैट इज अ गांधीयन टूल। गांधी तो ऐसे फास्ट रखते थे ये लोग, हड़ताल, भूख हड़ताल के लिए भगत सिंह जाने। तो भगत सिंह तो शर्मिंदा करते हम लोग अगर उनको भीख में जिंदगी दे देते, तो आप बात भी नहीं कर रहे होते भगत सिंह की, कर रहे होते। Hence proven. So what we are told and what is the truth can be entirely दृश्य। तो your generation should go find out facts, read, interpret, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई बैर नहीं है किसी का, समझे दोस्त? राम से सीख सकते हो, सीख लो, सीख लो ना। अरे अयोध्या के बाहर खड़े हो जाओ जाके, जितने भगतगढ़ लौट रहे हो ना, उनसे पूछना राम का कितना अंश है तुम्हारे अंदर। 5 आदमी मिल जाए, तुम जो कहो मैं कर दूंगा। राम उतारना बहुत कठिन काम है जिंदगी में, बहुत कठिन काम। कृष्ण उतारना और कठिन काम। गांधी तो असंभव, लेकिन फिर भी गांधी हिस्ट्री है, प्रोसेस है, सीख लो। कि जिससे सीखना हो, बुद्ध से सीखना, बुद्ध से, नेपोलियन से सीखना, सीख लो, हिटलर से सीख लो, उतनी हिंसा तो कर लो यार। सब ओपन है बॉस दुनिया में। इस मोमेंट के पहले की सारी नॉलेज इज अवेलेबल, यू अंडरस्टैंड? इट्स अ चॉइस, so nobody is stopping you from learning anything, so there is nothing right or wrong about it. You, but my contention is very simple कि आप अकाउंटेबिलिटी रखिए अपनी। आपने चॉइस से कुछ किया है तो चॉइस करिए और उसका पालन करिए, अपने लिए तो अकाउंटेबल हो जाइए, इतना करना है, ठीक है? पढ़ो लिखो, मस्त रहो। नेपोलियन की किताब बता देता, एमिल लुडविक की बायोग्राफी है, पढ़ लेना। रो बच्चे,
एमिल लुडविक की किताब है बोनापार्ट, पढ़ लेना, ठीक है। और शिव वर्मा और जयदेव कपूर को ढूंढो कौन थे, तुम सब हो, वो नहीं, अकेला नहीं, ठीक है। और कुछ चलो बंद करो, बहुत हो गया आज का कोटा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। Thank you, sir. Your words truly inspire us. Now, I would like to request Madam Principal to enlighten us with her valuable and insightful words. Already, I think we've gained a lot of insight. Thank you, Dr. Bajpayee, for such an enlightening session, for making children understand the actual meaning of non-violence. It is not about just fighting, right? It is our dissatisfaction, it is our negativity, it is our bitterness, and jealousy, envy, and so much else. So please understand that, and also understand how we have to learn to be humans if we have to adopt Gandhiji in our life. After seeing such a beautiful assembly which was presented by class 11, there was so much of peace and tranquility in the audience. So I could understand that, yeah, the spirit of Gandhiji is here today. So a very big hand for them for preparing this wonderful assembly. All of them have performed very well and justified Gandhiji so beautifully, and the song was sung so beautifully, the orchestra was so good, the poem was very nicely recited, the speeches were very good, and the skit, of course, skit takes the cake, because skit made everything so practically clear to all of us. And Dr. Bajpayee too has given us such very practical examples of how we have to make Gandhiji a process and how we have to actually live our lives. Very, very important, by making the right choices. We all are victims of our choices day and night. Our decisions are going to define us today. They are defining us today, and our decisions are going to define us in future as well. It is very, very important. So I hope that you will justify yourself being Indians by understanding Gandhiji's spirituality and adopting a little bit of it. It is very important. He was a symbol of Indianness. So if we have to prove our Indianness, we have to become a little bit of Gandhi, even if it is 1 or 2%. And like Dr. Bajpayee said, that keep your brick straight and the entire edifice of the society will be straight. Okay, so you have to set examples yourself. Like Gandhiji also said, somebody said that, what message would you like to give to the world? So Gandhiji said that my entire life is a message. I need not give any message to everyone. And the same thing Dr. Bajpayee was also saying. His whole life was an experiment, and his experiments are lessons for all of us, right? So same way we can also experiment ourselves with what is right and see what actually makes us truly happy and peaceful. So wonderful session, wonderful celebration of Gandhi Jayanti, and I hope we have learned something and we will become, as far as possible, non-violent. We will think, we will count before getting aggressive in our thoughts or action. So thank you very much. Thank you so much, Dr. Bajpayee.